algebra or operations of functions. ठीक है, so we have to see various algebraic operations that can be carried out over different functions. So let x belongs to R. Okay, so this is the relation, x belongs to R. X is the subset of R, and f is from x to R, and g is another function which is again from x to R. ठीक है. So sum of functions f plus g of x, this is read as f plus g of x is equal to f of x plus g of x for all x belongs to x. So you can add two functions. Similarly, we can subtract two functions. F minus g of x is nothing but f of x minus g of x. Similarly, we can multiply two functions. F into g of x is equal to f of x into g of x. And all these three are true for all the values of x belong to its domain. ठीक है, x की वैल्यू कहां पर है, इसके डोमेन में, कैपिटल X में. So this addition, subtraction and multiplication is true for all the values of x. In case of quotient, that is division of functions, f upon g of x is equal to f of x upon g of x. That is clear. But this is true for all values of x belongs to x minus x0. तो हमें सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होगा. एक ऐसी वैल्यू होगी x की जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हमें चलेगा नहीं. तो वी हैव टू एक्सक्लूड दैट वैल्यू ऑफ x वेयर डिनोमिनेटर बिकम 0. मतलब हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू x माइनस x0. x0 क्या है, x0 इज सेट ऑफ x सच दैट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. देखिए, मैं g ऑफ x नहीं बोल रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर बोल रहा हूं. Whosoever is the denominator, it should not be 0. अगर वो जहां पर भी 0 होता है, उस x की पर्टिकुलर वैल्यू हमें ओमिट कर देनी है, हमें कंसीडर नहीं करनी है फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड. सो दिस इज ओनली इन केस ऑफ डिवीजन. अदरवाइज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन तो हम डायरेक्टली कर ही सकते हैं. सेकंड, अब next operation is scalar multiplication of a function. Scalar multiplication means we have to multiply a constant number to a function. So kf, k into f, kf of x is equal to k into f of x, and this is again true for all x belongs to x. Okay, so this is scalar multiplication. So these are total 5 operations that can be carried out on functions. Now next is composition of functions. ठीक है, composition of functions. Last lecture में हमने डिस्कस किया था composite function is nothing but it is a function of a function. ठीक है, जनरली function is of a variable, f of x होता है. ठीक है, हम क्या लिखते हैं, f of x या फिर g of x. So this is a function f of a variable x. This is a function g of a variable x. ठीक है, ये f और g की यूज किया बिकॉज बोथ आर डिफरेंट फंक्शंस. ये अलग फंक्शन हो गया, ये अलग फंक्शन हो गया. नाउ देयर मे बी अ सर्टेन फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. फंक्शन ऑफ ए फंक्शन is called as a composite function. Sometimes it can be extended to n numbers. Means function of a function of a function of a function. Again, it is what? It is a composite function. So let us see. There are 3 sets: set A, set B and set C. Set A contains variable x, set B y, set C z. ठीक है, now y and x are connected by function f and y and z are connected by function g. ठीक, so y is a function of x, that is f, and z is a function of y, that is g. It means what? There must be some relation between x and z also. So we say that z is a function of x given by g o f, that is g of f of x. So it can be written like this. Let us see f from a to b. ठीक है, a से b तक, and g from b to c. That is another function. Then g o f is from a to
C and is GOF of X that is equal to G of F of X. So let us say Z is equal to what? Z is nothing but G of Y. हमने लिख दिया Z is equal to G of Y. Again, Y is what? Y is nothing but F of X. So we have replaced this Y by F of X. Then we get Z is equal to G of Y is equal to G of F of X. So that is called as a function of a function or a composite function. Now next is inverse function. हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है इनवर्स फंक्शन. y is equal to sin x होगा तो x is equal to sin inverse of y. ठीक है, y is equal to tan x होगा तो x is equal to tan inverse of y. So that is called as a inverse function. तो समझते हैं inverse function क्या होता है? If f from a to b defined by y is equal to f of x. Okay, so y is a function of x. Is 1 1 and onto. अब देखिए इसे मैंने अंडरलाइन किया है. Is 1 1 and onto function, then f inverse from b to a. f कहां से कहां तक था? f था a to b. f inverse हो गया उल्टा, मतलब b to a is given by x is equal to f inverse of y. y is equal to f of x था तो इनवर्स फंक्शन क्या हो गया? x is equal to f inverse of y. So this is the inverse function. कंडीशन इसके लिए एक ही है कि जो भी गिवन फंक्शन है इट शुड बी 1 1 and on 2. ठीक है, अब इसको समझते हैं 1 1 on 2 होना क्यों जरूरी है. इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है या फिर इन पर्टिकुलर एक फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लीजिए 1 1 और ऑन 2 फंक्शन है तो हमने ये दिखा दिया यहाँ पर 1 1 और ऑन 2 फंक्शन. चलिए इस फिगर की जरूरत नहीं है आपको, इसको मिटा देता हूँ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. ये वाले प्लेस यूज करता हूँ. फंक्शन कैसा है? 1 1 एंड ऑन 2. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. फंक्शन ऐसे है, इधर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स, इधर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स. आप नाम दे सकते कुछ भी 1 2 3 A B C. Function is 1 1. It means what? One element is connected to one element of another set. This is F, which is from A to B. ठीक है, इस तरीके से फंक्शन है. 1 1 है, 1 1 है मतलब every element of set A is connected to a unique element of set B. onto भी है. onto क्यों? क्योंकि कोडोमेन ऑफ सेट B is nothing but range. मतलब सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स तो यूज होने ही है, क्योंकि फंक्शन में तो वही बेसिक कंडीशन है. फंक्शन की बेसिक कंडीशन ही वही है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए. जब मैं ऑनटू बोलता हूं, ऑनटू का मतलब हुआ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. ठीक है, मतलब कंप्लीट सेट बी जो है इट इज रेंज. इट मींस ऑल द एलिमेंट्स आर मैप्ड or they are images of certain elements of set A. पर इसी टाइप के फंक्शन में आपको इनवर्स मिलेगा, क्योंकि जब हम इनवर्स लिखेंगे तो ये वाला कैसे हो जाएगा? सेट B जो है यहां पर मैं लिखूंगा सेट B, इधर मैं लिखूंगा सेट A, एंड नाउ B इज कनेक्टेड टू A. ठीक है, B इज कनेक्टेड टू A अंडर द फंक्शन F इनवर्स. ये F था तो ये F इनवर्स हो गया. और ये कनेक्टिविटी पॉसिबल होने के लिए बी के मतलब इस सेट बी के सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, मतलब इन सबके लिए इधर इमेज होना जरूरी है. तो यहाँ पर बी में कौन था? ए बी सी. इधर में लिख दिया ए बी सी. इधर सेट ए में कौन कौन है? ए इज कनेक्टेड टू व्हाट? 2. बी 1 के साथ है और ये सी 3 के साथ. सो इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल है. अब मान लीजिए फंक्शन 1 1 नहीं होता था. फंक्शन अगर 1 1 नहीं होता था तो क्या होता था फिर? यहां पर आपका ये भी मान लीजिए 2 जो है इट इज लेट अस से आल्सो कनेक्टेड टू B. नाउ दिस इज व्हाट? ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है. 1 1 नहीं है, 1 कनेक्टेड टू 1 ऐसा नहीं है, मेनी 1 हो गया ये. दिस इज व्हाट? मेनी मतलब 2 लोग एक B के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक, अब क्या होता था इस केस में? जब मैं इसको अगर मान लीजिए इनवर्स फंक्शन मुझे लिखना है,
So 1 and 2 are connected to B. इसका मतलब हुआ कि B is connected to what? 1 and 2. इसका उल्टा फिगर मैं बना रहा हूं. B is connected to 1 and 2. Now this cannot be a function. ठीक है, ये फंक्शन नहीं हो सकता. ये जरूर फंक्शन है. दिस इज अ फंक्शन. दिस इज मेनी वन एंड इनटू फंक्शन. मेनी वन क्यों? दो कनेक्टेड हो गए एक के साथ. सो दिस इज मेनी वन. मेनी वन हो गया. फिर ये ऑन टू भी नहीं है. ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या होती है? को डोमेन और रेंज इक्वल होने चाहिए. यहाँ पर को डोमेन एबीसी है और रेंज बीसी है खाली. ये नहीं है रेंज में, या ये आउट ऑफ रेंज हो गया, आउट ऑफ कवरेज हो गया, है ना. इसके साथ कुछ भी कनेक्टेड नहीं है. सो को डोमेन तो हो गया ए बी सी, रेंज हो गई बी सी, चलेगा. दिस इज अ फंक्शन. बट इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? मान लीजिए मैंने इनवर्स बना दिया यहाँ पर. बी के एलिमेंट लिख लिए, ए के एलिमेंट लिख लिए, जैसे कनेक्टिविटी वैसे शो कर दिया. अब देखिए ये फेल करता है. फंक्शन के जितने भी टेस्ट है फेल करता है. सबसे पहला टेस्ट क्या होता है फंक्शन के लिए? तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए. तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ए, ये कनेक्टेड नहीं है. दूसरी बात और एक चीज है. कौन सी? सेट बी जो है, मतलब सेट यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है, इस फर्स्ट सेट में से हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए दूसरे सेट में. यहाँ पर एक ही एलिमेंट के दो दो इमेजेस है. बी के लिए 1 भी है, बी के लिए 2 भी है. देन दिस इज नॉट अ फंक्शन. सो हम हमेशा ये बोलते हैं कि इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? अगर गिवन फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा तभी इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. सो दिस इज अबाउट इनवर्स फंक्शन. नाउ next point is piecewise defined function. Piecewise defined function मतलब this particular function has certain value in different interval, again has another value in another interval. So that type of function is called as piecewise defined function. A function may be defined over a union of intervals. A particular function can have different values in different intervals. Just for example, यहाँ पर दिया f of x equal to x square plus 1 for x less than 1 and f of x is equal to 2 raised to x for x greater than or equal to 1. किस टाइप का हुआ है? ये आपके जैसा है. घर पे कुछ, फिजिक्स के क्लास में कुछ और आपका रूप दिखता है, केमिस्ट्री के क्लास में आपका और कुछ रूप दिखेगा, मैथ पे आएंगे तो एकदम सिंसियर हो जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो एक अलग रूप होता है, फ्रेंड के साथ मिक्स होते तो एक अलग ग्रुप होता है. सो इन डिफरेंट इंटरवल्स यू आर बीइंग यू आर ए सिंगल पर्सन बट यू आर बिहेविंग इन डिफरेंट मैनर्स एट डिफरेंट लोकेशंस. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन. इन डिफरेंट इंटरवल इट हैज सर्टेन डिफरेंट वैल्यू एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द फंक्शंस. कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि चलिए ठीक है वो हर जगह बिल्कुल सेम, एकदम संत महात्मा वो हर जगह पर, घर पे जैसे है वैसे ही कॉलेज में वैसे ही क्लास में एकदम एक ही लेवल पे मेंटेन रखते हैं अपने आप को. बट कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर कुछ अलग ग्रुप, वहां पर कुछ अलग ग्रुप, वहां पर कुछ अलग ग्रुप. दैट इज दिस फंक्शन, दैट इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, तो x लेस देन 1 होगा तो वैल्यू फंक्शन की हम क्या एज्यूम करेंगे? x स्क्वायर प्लस 1. x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो 2 रेज़ टू x. ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो नेचर होगा, इट विल बी डिफरेंट इन दिस डिफरेंट इंटरवल्स. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका ग्राफ निकालता हूं, तो एक टेंटेटिव आपको ग्राफ निकाल के देता हूं. इट इज लाइक दिस. x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, -1 -2 whatever. अब जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या है हमारा? x स्क्वायर प्लस 1. तो x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू होगी x स्क्वायर प्लस 1, मतलब 0 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1. ठीक है, और ये 1 तक कैरी करेगी यहां तक. 1 के लिए क्या हो जाएगी? 1 के थोड़ा सा कम है तो 1 के लिए होगी 2 रेज़ टू 1 दैट इज 2. तो 1 के लिए वैल्यू हो जाएगी 2. अब ये x स्क्वायर प्लस 1 जो ग्राफ बनेगा यहां तक जो है ये x स्क्वायर प्लस 1 है. ठीक, और इसके आगे जो होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए 2 रेज़ टू x है. तो उसके आगे आपका शेप इस टाइप से आएगा. ये
2x का ग्राफ है और ये x² + 1 का ग्राफ है। यहां तक ऐसा शेप है, इस पॉइंट तक। फिर आगे 2x वाला शेप ले लिया उसने, इधर ये डॉटेड हो जाएगा सारा। ये 2x इधर कंसीडर नहीं होगा। 2x का ग्राफ यहां तक है खाली, इसके नीचे नहीं है। इसके नीचे ग्राफ कौन सा आएगा? x² + 1 का। ठीक। सो इन दिस वे there may be a piecewise defined functions. Now there are different types of piecewise defined functions. So first one, in these piecewise defined functions there are certain special functions, like say signum function, or it's not a signum function, it's a signum function. ठीक है, signum, SIGNUM, signum function। ठीक है, कुछ लोग इसे सिग्नम फंक्शन भी बोलेंगे, तो आपको याद रखने के लिए ठीक है, बोर्ड में सिग्नम ही लिखना है, आपने सिग्नम ही ध्यान में रखना है। इट्स अ सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन इज डिनोटेड बाय SGN। ठीक है, SGN ऑफ x इज इक्वल टू -1 when x is less than 0, signum function x is equal to 0 when x is equal to 0, and it is equal to +1 when x is greater than 0. So this signum function has only 3 values. -1 होती है, 0 होती है और 1 होती है। -1 कब होगी? जब x लेस देन 0 होगा। 0 कब होगी? जब x इक्वल टू 0 होगा। और 1 कब होगी? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ग्राफ अगर हम इसका निकालते हैं तो ग्राफ कैसे आएगा? दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो x जब लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? -1। तो यहां से देखिए, मैंने -1 से एक लाइन आ गई, इट विल गो अप टू इंफिनिटी। x इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां पर मैंने 0 0 ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, मतलब कि ओरिजिन फिलअप कर दिया मैंने इसे। यहाँ पर ओपन इंटरवल है, देखिए लेस देन 0 ओपन इंटरवल, इधर ग्रेटर देन 0, इधर भी ओपन इंटरवल है, और x की वैल्यू कैसे है? +1, तो ये +1 हो गई, इट विल गो अप टू इंफिनिटी। तो इस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आया। अब एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जिसका ग्राफ आप पेन पेपर से उठाए बगैर निकाल सकते हैं, देन इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर आपको ग्राफ निकालते समय पेन उठाना पड़े, देन इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल चीज बोलेंगे हम, जब आप ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे तब। ठीक। और दूसरा आप कैसे चेक कर सकते हैं? जैसे यहां पर देखिए, मैंने यहां से इधर ओपन इंटरवल है, इधर x इज इक्वल टू 0 पर इधर 0 वैल्यू है, यहां पर ब्रेक हो गया, ग्राफ में ब्रेक आ गया, यहां से लेके इस पॉइंट तक। वैसे ही -1 से लेके 0 तक ब्रेक आ गया, कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं हुआ ये। ठीक है, देन दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। और डिसकंटिन्यूअस कहां पर है? एट x इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 के आगे की बात करें तो यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया इसमें, और ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन फाइंड आउट 3 डिफरेंट वैल्यूज, इधर -1, इधर 1, इधर 0, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। नाउ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन मतलब possible values of x. So this function, signum function, is defined for all the values of x. मतलब domain is set of real numbers. Range क्या है? Range is nothing but -1, 0 and 1. 3 numbers only. So range is a set of -1, 0, 1. That are the only values of y possible for all the infinite values of x. पॉजिटिव होंगे तो +1, नेगेटिव होंगे तो -1, 0 होगा तो 0। दैट इज कॉल्ड एज ए सिग्नम और सिंगम फंक्शन। सो दैट्स अ सिग्नम फंक्शन। एक अनदर हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अपना पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस फंक्शन, मॉड फंक्शन। मॉड हमारे लिए बहुत आसान होता था जब हम 7th में पढ़े थे। क्यों? क्योंकि उसमें से साइन आपको हटा देना है। मॉड ऑफ -5 + 5, मॉड ऑफ -7 + 7, मॉड ऑफ 7 + 7, मॉड ऑफ 2 + 2। ओके, सो दैट इज अ मॉडुलस फंक्शन।
अब थोड़ा सा डिटेल में इस मॉडुलस फंक्शन का हम पढ़ेंगे। फर्स्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? सो मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, is equal to 0 for x equal to 0 and is equal to x for x greater than 0. So this is are the values of modulus function. ग्राफ अगर हम निकालेंगे इसका तो जैसे देखिए x जब लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स की वैल्यू होती है माइनस एक्स, तो x लेस देन 0 तो इधर हो गया। सो दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। फिर हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 when x is equal to 0। फिर आगे y is equal to x when x is greater than 0, तो x जब greater than 0 हो जाएगा तो y is equal to x की लाइन आपको मिलेगी। So this is the modulus function. Here you can observe that x is positive, x is negative, x is 0, ठीक, but y is always positive, y हमेशा पॉजिटिव है आपका, 0 भी है और पॉजिटिव भी है। y इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0 होगा। मॉड ऑफ 0 इज 0, ठीक। सो दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन। नाउ इन दिस डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स, x की सारी वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, मतलब डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या हुआ? रेंज मतलब y की वैल्यूज। अब देखिए y की जो वैल्यूज है दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं आएगी, y की वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी, तो y की वैल्यूज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। सो दैट इज नथिंग बट योर रेंज, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग 0 भी हो सकती है। 0 कब होगी? जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। सो इट इज रेंज दैट इज 0 टू इंफिनिटी। नाउ हियर दिस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0 is called a critical point. इसे critical point बोला जाता है। Critical point means what? Where point near which a function changes its behavior, उस पॉइंट को बोला जाता है critical point। जैसे अभी मैथ की क्लास शुरू है, आप एकदम सिंसियरली बिल्कुल क्लास अटेंड कर रहे हैं, जैसे ही क्लास खत्म हो गई 12 बजे आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, एकदम से उठ के मम्मी खाना हुआ क्या, ये हुआ क्या, हो गया, मुझे भूख लगी, मुझे पानी पीना है, मुझे आराम करना है, बिहेवियर सडनली चेंज हो जाएगा। सो दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये समझना बहुत जरूरी है। हर जगह पर देखिए, इधर भी ये वाला क्रिटिकल पॉइंट हो गया जहां पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। यहाँ पर x लेस देन 1 में तो ऐसे था x स्क्वायर प्लस 1 एकदम सिंसियर, जैसे ही x ग्रेटर देन 1 हो गया वैसे 2 रेज़ टू x हो गया, कुछ अलग चीज बन गई। तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या हुआ? बिहेवियर फंक्शन का चेंज हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल पॉइंट। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में, मतलब मॉडुलस फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हुआ? x इज इक्वल टू 0, मतलब कौन सा? मॉड के अंदर जो कुछ भी होगा, ठीक है, मॉड के अंदर जो कुछ भी होगा इक्वल टू 0 आप करेंगे तो यू विल गेट अ क्रिटिकल पॉइंट। क्योंकि जरूर नहीं हर बार मॉड के अंदर x ही होगा, मॉड के अंदर आपने देखा है ऐसे भी आ सकता है 2 रेज़ टू x माइनस 1, 2 रेज़ टू x प्लस 1, मॉड के अंदर sin x, tan x, log x, व्हाटएवर, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर फंक्शन जो भी मॉड के अंदर है जब इक्वल टू 0 हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज ए क्रिटिकल पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स बिहेवियर। मतलब ग्राफिकली अगर बात करें तो जहां पर उसका ग्राफ चेंज होता है, जहां पर उस फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, ठीक। सेकंड फंक्शन, अब इसी से हमने ये वाला बनाया, जैसे वो सेकंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा, इसी को ध्यान में रखना आपने, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो उसी तरीके से मैंने इसको भी इधर लिखा है, देखिए मॉड ऑफ x माइनस ए इज व्हाट? इट इज माइनस ऑफ x माइनस ए, और ये कब? जब ये वाला x माइनस ए लेस देन 0 होगा, जैसे यहाँ पर x लेस देन 0 था। दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज इक्वल टू 0 कब? व्हेन मॉड के अंदर जो भी है इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस ए अगर 0 होगा तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। देखिए x माइनस ए 0,
यहाँ पर आपने रख दिया 0, तो 0 का मॉड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव x माइनस ए है अगर x माइनस ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो, जैसे कि हमने यहां पर लिखा था। अब ये भी लीनियर फंक्शन है, इसका अगर आप ग्राफ निकालेंगे यू विल ऑब्जर्व दैट क्रिटिकल पॉइंट जो कि 0 पर था, क्रिटिकल पॉइंट इस केस में कहां पर हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट हुआ x माइनस ए इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू ए, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये है x इज इक्वल टू ए एंड a इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव x एक्सिस पर आया। दिस इज ओरिजिन, x इज इक्वल टू ए हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पर एक अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे देन यू विल गेट अ लाइन ओवर हियर, यू गेट टू लाइंस, y इज इक्वल टू प्लस x माइनस ए, y इज इक्वल टू माइनस x माइनस ए, मतलब माइनस माइनस प्लस a माइनस x, इधर x माइनस ए इधर a माइनस x। सो दीज आर द टू लाइंस। तो ये हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, मॉड ऑफ x माइनस ए के लिए। ठीक है, अगेन इसका डोमेन क्या होगा, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा, रेंज इज अगेन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y और ऑल द नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y। एक एग्जांपल है यहां पर, इसे हम सॉल्व करते हैं। So let us see this example. Number of solutions of mod of 2 raised to x minus 1 plus mod of 2 raised to x plus 1 equal to 2 are. तो हमें ये डिफाइन करना है, हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना, बट वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 raised to x दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर 2 raised to x plus 1 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 2 raised to x ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो जब मैं इसमें प्लस 1 अगर कर देता हूं तो वो भी ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 2 raised to x माइनस 1, और ये वाला फंक्शन पॉजिटिव है तो मैं लिख दूंगा प्लस 2 raised to x plus 1 इक्वल टू 2। नाउ दिस मॉड इज इक्वल टू व्हाट, ये 1 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 raised to x उधर गया तो हो गया माइनस 2 raised to x। अगेन हियर mod लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो जो 1 माइनस 2 raised to x है वो हो गया माइनस इन ब्रैकेट 2 raised to x माइनस 1। ठीक है, और इधर क्या है, मॉड ऑफ 2 raised to x माइनस 1। अब देखिए किसी भी फंक्शन का नेगेटिव साइड कब आता है, किसी भी फंक्शन का नेगेटिव साइड कब आता है, व्हेन दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज लेस देन 0। जैसे x का माइनस x कब बन रहा है, व्हेन x इज लेस देन 0। तो वैसे ही 2 raised to x माइनस 1 का माइनस बन रहा है, ये कब बनेगा, जब 2 raised to x माइनस 1 जो फंक्शन है इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, ये वाला फर्स्ट स्टेप यहां से आप ध्यान में रखिए या फिर यहां से ध्यान में रखिए। मॉड फंक्शन का अगर आपको नेगेटिव पार्ट मिल रहा है सो इट इज ट्रू फॉर माइनस और इट इज ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन लेस देन और इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर लेस देन 0, इधर भी लेस देन 0, लेकिन यहाँ पर मैंने इक्वल टू 0 भी लिया क्योंकि इधर इक्वालिटी है बीच में। तो 2 raised to x माइनस 1 जो है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। देयरफॉर व्हाट, माइनस 1 उधर गया तो हो जाएगा प्लस 1, 2 raised to x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2 raised to x लेस देन और इक्वल टू 1 कब होगा, 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 0 is 1। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तब ये इक्वालिटी आपको मिलेगी 1 की, और ऑब्वियसली जब इसके नीचे x की ऑल द वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, x is less than or equal to 0, so that can be written as x is less than or equal to 0। x जब 0 होगा तो आपके फंक्शन का आंसर हो जाएगा 1, इक्वालिटी मिल जाएगी, और उसके नीचे मतलब लेस देन 0। तो x is less than or equal to 0 कहां से कहां तक होगा, x belongs to माइनस इंफिनिटी कॉमा 0।
सो ऑब्वियसली माइनस इंफिनिटी से लेकर अगर 0 तक वैल्यूज है तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर गेटिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, इस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। Now next, piecewise defined function or discontinuous function is greatest integer or step function. Greatest integer function or step function. Now greatest integer x, ठीक है, हम जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में x, so it has to be always mentioned over here that it is the greatest integer. हाँ, yes, just a second. बरं अजून कोणी जॉईन झाला नसेल तर ग्रुपवर मेसेज पण टाका. ओके. Now greatest integer function is denoted like this. X has to be written in a square bracket. So this is not square bracket में x ऐसा नहीं है. Here it is specially denoted for greatest integer function. Now when we say greatest integer x, it means what? Integer value of x is less than or equal to x. Is less than or equal to x. So greatest integer x is always less than or equal to x. Equality occurs only when x is an integer. x अगर integer होगा तो greatest integer x और x दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, देखिए greatest integer 9.3 is 9। मतलब हमें चेक क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर देखना है 9.3 के नीचे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है। तो 9.3 के नीचे सबसे बड़ा इंटीजर होता है 9। नेगेटिव वैल्यूज में स्पेशली ध्यान दीजिएगा, -7.3 इसका अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए देन इट इज नॉट -7, इट इज -8, क्योंकि -7.3 के नीचे हमें चेक करना है। -7.3 के नीचे मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप चेक करेंगे यू विल गेट -8 एज ए इंटीजर। ठीक, वहीं पर अगर हम ये लिखते हैं कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6, इट इज 6। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5, इट इज -5। सो इक्वालिटी ऑकर्स ओनली इफ दिस पर्टिकुलर नंबर दैट इज x इज एन इंटीजर। हमने लिखा है इक्वालिटी ऑकर्स ओनली व्हेन x इज एन इंटीजर। इंटीजर होगा तो वही वैल्यू आएगी, अगर इंटीजर नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर नंबर के जस्ट नीचे कौन सा इंटीजर है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ऑब्वियसली एनी नंबर x कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ टू पार्ट्स। इट इज रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x. So this is called as fractional part of x and this is integral part of x. जैसे कि अगर 9.3 है तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो गई 9 और प्लस 0.3। नाउ दिस 0.3 इज फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, 9.3 के केस में कैसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 0.3, 9 इज इंटीग्रल पार्ट, 0.3 इज फ्रैक्शनल पार्ट। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट फ्रैक्शनल पार्ट of x is always between 0 and 1. It is always less than 1, but it can be equal to 0. जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 6, so 6 can be written as 6 plus 0. तो 6 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया, या फिर -5 प्लस 0 फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया। सो फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, नंबर लाइन पर ये डिनोशन अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगर कोई भी नंबर x है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x, मतलब कि उसके नीचे होगा नंबर लाइन पर। तो इसलिए नेगेटिव नंबर में हमें स्पेशली ध्यान देना है, कम हो जाएगा मतलब नंबर कम होना है। तो -7.3 का हो जाएगा, -7.3 अगर यहाँ पर होगा तो उसके नीचे आपको इधर -8 मिलेगा, ना कि -7। -7 आपका इस साइड पर होगा। ठीक, now properties of this greatest integer x. Now x minus 1 is less than greatest integer x and it is less than or equal to x. ये तो आपको मालूम ही है, greatest integer x is less than or equal to x, ये वाला। and x minus 1 जो होता है वो greatest integer x से भी कम होता है। जैसे यहाँ पर
आप ये हर एक सारी प्रॉपर्टी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। नेगेटिव वाला नहीं लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, पॉजिटिव वाले में आप तुरंत कर पाएंगे। देखिए x की वैल्यू अगर 9.3 है तो 9.3 माइनस 1 इट इज हाउ मच, इट इज 8.3 and it is less than this 9, so it is less than greatest integer x. Similarly, other property, greatest integer x plus n is equal to greatest integer x plus n, where n is what, it is a integer, so it will remain as it is. n तो ऑलरेडी इंटीजर है तो n will remain as it is. जो x है इसका हमें इंटीग्रल पार्ट लेना होगा. Then greatest integer x plus y is always greater than or equal to greatest integer x plus greatest integer y. Always यहाँ पर भी इक्वालिटी कब ऑकर होगी, जब दोनों भी नंबर मतलब x और y अगर इंटीजर होंगे तो. ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन n, वैसे x प्लस 2 अपॉन n, ऐसे अप टू x प्लस n माइनस 1 अपॉन n. So this is equal to greatest integer nx. So for n belongs to n, where n is what, it is a natural number, and x belongs to R. X can be any real number. ठीक. Now graph of y is equal to greatest integer x. अब इसका ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग होता है और तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इसे हम स्टेप फंक्शन, अदर लैंग्वेज में दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेप फंक्शन, ऐसा क्यों बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज लिखे हैं y के. y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x. तो जब x -2 और -1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 होगी. जब -1 और 0 के बीच में होगा तो -1 होगी. 0 और 1 के बीच में, ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी. यहाँ पर ग्राफ दिखाते हैं हम. x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब x इज लाइक ओवर हियर. ठीक, y की वैल्यू तब आपकी क्या है, y की वैल्यू है 0. 0 और 1 के बीच में y की वैल्यू है 0. 1 और 2 के बीच में कितनी हो जाएगी, 1 और 2 के बीच में फिक्स वैल्यू होगी आपकी, दैट इज 1. जब x 1 और 2 के बीच में होगा तो फिक्स वैल्यू हो जाएगी आपकी 1. नेक्स्ट 1 इक्वालिटी भी हो सकती है. ठीक है, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, इधर ओपन इंटरवल आएगा. सिमिलरली जब x की वैल्यू when x lies between 2 and 3, when x lies between 2 and 3, x अगर इधर कहीं पर होगा तो y होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब कि 2 और 3 के बीच में है तो 3 के नीचे कौन सा इंटीजर आता है आपका, 2 आता है. तो जब 2 और 3 के बीच में होगा तो आपका यहाँ पर फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इधर ओपन इंटरवल. ठीक, जब 0 और 1 के बीच में आपका x होगा तब आपकी वैल्यू y की हो जाएगी 0, मतलब यहाँ पर ओपन इंटरवल. सिमिलरली ऐसे हम नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो -1 और 0 के बीच में जब x है, मतलब x की वैल्यू अभी यहाँ पर है -1 से लेके 0 तक, तब y की वैल्यू होगी आपकी -1. फिर -2 और -1 इन दोनों के बीच में अगर x होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी -2. -2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, इधर आपका आएगा -2. सो दिस इज अ स्टेप फंक्शन. देखिए हर एक जगह पर जैसे मैंने ये ग्राफ निकाला, फिर यहाँ पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी, डॉटेड लाइन. पेन उठाना पड़ेगा आपको, डिसकंटिन्यूटी हो गई. इधर भी डॉटेड लाइन है, यहाँ पर डॉटेड लाइन है, इधर डॉटेड लाइन है. सो दिस लुक्स लाइक अ स्टेप. स्टेयरकेस होता है हमारा, स्टेयरकेस. सो इट इज लाइक स्टेप्स. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए स्टेप फंक्शन. फॉर द पर्टिकुलर इंटरवल इट हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ y. दो इंटीजर्स के बीच में 0 और 1 के बीच में 0, 1 और 2 के बीच में 1, 2 और 3 के बीच में 2, यहाँ पर y की वैल्यू. So this is a step function of greatest integer function.
दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जो फ्रैक्शनल पार्ट है अगर उसका हम ग्राफ निकालेंगे तो कैसे होगा? सी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। अगर 1 हो गया तो देन इट विल बिकम इंटीग्रल पार्ट, इट इज नॉट फ्रैक्शनल पार्ट। 1 के नीचे 0.99999 कितने भी आप बोले, दिट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आप 1 बोलेंगे देन इट इज अ इंटीग्रल पार्ट। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 पॉइंट में, है ना। हम हमेशा पूछते हैं सर पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो जो पॉइंट वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ए फ्रैक्शनल पार्ट व्हिच इज बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ पर हमने शो किया, अगर उसका ग्राफ आपको निकालना है सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू x प्लस 2 when x lies between -2 and -1. It is equal to x plus 1 when x lies between -1 and 0. It is equal to x if x lies between 0 and 1. देखिए x अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू हो जाती है x। मतलब जैसे 0.1, 0.2, 0.3 ये सारे नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये ग्राफ पर 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर होगा वही आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में x माइनस 1, 1 और 2 के बीच में कौन आएगा? जस्ट फॉर एग्जांपल 1.2, ये 1 और 2 के बीच में है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हुआ? 0.2। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में। ठीक है, और इधर रहेगा आपका अगेन डॉटेड लाइन, और ये 1 तक जा रहा है लेकिन 1 को टच नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने खाली लाइन दिया है, ये ओपन रहेगा, यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती कि 1 हो गया तो वो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इधर आगे देखेंगे तो इस तरीके से आएगा। सो यू विल गेट अ सर्टेन शेप लाइक दिस। ये सॉटूथ बोला जाता है इसको, सॉटूथ वेव, सॉटूथ, है ना। सॉटूथ आपने वो करवत बोलते हैं मराठी में, उस तरीके से आप देखेंगे तो उसका ग्राफ इस तरीके से है। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x which is always between 0 and 1 and it is discontinuous at all the integral values of x. डिसकंटिन्यूअस है कहां पर? इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। 1 होगा तो वहां पर देखिए डॉटेड लाइन आ गई, 2 पर डॉटेड लाइन आ गई, 3 पर डॉटेड लाइन आ गई। ठीक, एंड दिस पार्ट इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। 1 पर देखिए डॉटेड लाइन, 2 पर डॉटेड लाइन। फंक्शन के ग्राफ में जब मैं ग्राफ निकाल लेता हूं तो 1 पर मुझे डॉटेड लाइन दिखती है, 2 पर डॉटेड लाइन दिखती है। So these two functions are discontinuous at all the integral values of x. 1.2 होगा तो वहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी। Okay, so this is greatest integer function or step function and fractional part function, fractional part of x. अब जो एडिशनल 6.1 कल हमने सॉल्व किया था उसमें कुछ डाउट्स थे आपके, वो डाउट्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एडिशनल 6.1 में क्वेश्चन नंबर 13 we have to define domain and range of this function f of x equal to under root x minus 1 into 3 minus x। अब इस टाइप का एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है बट स्टिल अगेन आई एम रिपीटिंग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हमें डोमेन निकालना है तो f of x कहां पर डिफाइंड है वो लिखना होता है। So in this particular case, f of x is defined for x minus 1 into 3 minus x greater than or equal to 0। अंडर रूट में है तो अंडर रूट में है मतलब अंडर रूट में अगर फंक्शन होगा तो फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 एज इट इज, -1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x माइनस 3। अब -1 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया हमने? यहाँ पर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय -1। तो इस केस में इनइक्वालिटी चेंज होती है।
अब कल हमने इसका एक शॉर्टकट भी लिखा, कल मतलब लास्ट लेक्चर में हमने इसका शॉर्टकट देखा था, x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स x बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी, x बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी, 1 और 3 के बीच में आपको x मिलेगा। सो दिस इज नथिंग बट यूर डोमेन, ये डोमेन हो गया। अब हमें निकालना है रेंज, ठीक है, हमें रेंज निकालना। तो रेंज निकालने के लिए अंडर रूट में जो फंक्शन है उसे हम कंसीडर करते हैं। सो कंसीडर x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, x इंटू 3 फिर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स। सो दिस इज नथिंग बट माइनस एक्स स्क्वायर 3x प्लस एक्स इज 4x माइनस 3। हमने देखा था रेंज निकालते समय हमें करना क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर करना होता है इन दोनों टर्म्स का। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 मुझे बनाना है यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो इन दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ब्रैकेट में मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, so it will be like this minus in bracket x square minus 4x। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए ये 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच 2, और उसका स्क्वायर हो गया 4, तो मुझे 4 ऐड करना होगा, माइनस 3 एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 4 ऐड किया है ब्रैकेट में, लेकिन एक्चुअली मैंने कितना ऐड किया, इधर माइनस साइन है, तो मैंने -4 डाला है अपनी जेब से। अब ये मुझे निकालना होगा, जिसके लिए मुझे इधर करना होगा +4, ठीक है, -4 हमने एडिशनल लिया था, तो मैंने +4 कर दिया टू कैंसिल द इफेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, अब ये जो है 4 माइनस 3 इट इज 1, ठीक है, और ये माइनस और ये ब्रैकेट, नाउ कंप्लीट स्क्वायर है किसका, x माइनस 2 का स्क्वायर है। नाउ स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, स्क्वायर हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है इट इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये पूरे टर्म का आंसर 1 माइनस एनी पॉजिटिव नंबर, 1 माइनस एनी पॉजिटिव नंबर, तो जो भी आंसर आएगा इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, इसका आंसर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। अगर ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 हो गया, ब्रैकेट कितना हो गया 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो इक्वालिटी आएगा, और फिर उसके नीचे उसके कम वैल्यू आएंगे। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर इज नथिंग बट लेस देन और इक्वल टू 1। अब हमें तो इसका अंडर रूट चाहिए, ठीक है, ये जो लेस देन और इक्वल टू 1 वैल्यू है ये किसकी है, x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स की, हमें इसका अंडर रूट चाहिए। सो देयरफॉर इधर लिख देता हूं मैं, लगे तो x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, ये जो है दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1, देयरफॉर इसका जो अंडर रूट है ये कहां पर होगा, लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू तो इनफिनिटी तक जा सकती है, व्हाटएवर लेस देन और इक्वल टू 1 है, बट अगर इसका अंडर रूट आप लेंगे सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज इट इज फ्रॉम 0 टू 1। तो ये आपका हो जाएगा रेंज। एक नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन नंबर 21 में भी 20 में भी था, एडिशनल 6.1 का, वी हैव टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू, हमें चेक करना है। फंक्शन है यहाँ पर f फ्रॉम r टू r, f of x is equal to x cube plus 5। नाउ सी वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड f of x equal to x cube, हमने सॉल्व किया f of x equal to x cube, कहाँ पर r टू r में, एंड इट इज 1 1 ऑन टू, दोनों भी है, वो 1 1 भी है ऑन टू भी है, एक्स स्क्वायर नहीं होता है 1 1 ऑन टू, एक्स क्यूब 1 1 ऑन टू होता है। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर एक्स क्यूब 1 1 ऑन टू है तो एक्स क्यूब प्लस 5 भी 1 1 ऑन टू होगा, प्लस 5 तो एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये भी 1 1 ऑन टू होगा। बट चलिए एक बार जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं, तो पहले मुझे 1 1 चेक करने के लिए करना होगा f of x1 इज इक्वल टू f of x2।
अब एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 क्यूब प्लस 5, एफ ऑफ x2 होगा x2 क्यूब प्लस 5, दोनों तरफ से प्लस 5 कट हो जाएगा एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट, x2 क्यूब इधर आ जाएगा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x1 माइनस x2, फिर x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर which is equal to 0. Now this second term cannot be equal to 0. ये जो second term है it is always greater than 0 as discriminant जो है आपका it is less than 0. इस केस में हमने डिस्कस किया था पहले, ये जो होता है दिस इज इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ये खाली ग्रेटर देन 0 होता है। अब बच गया हमारे पास x1 माइनस x2, सो x1 इज इक्वल टू x2 मतलब फंक्शन हो गया 1 1। ऑन टू के लिए हमें रेंज और कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, ऑन टू के लिए कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए, तो हियर y is equal to f of x is equal to x cube plus 5, x कहां पर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, y कहां पर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सो इन दिस केस फॉर एवरी y belongs to R there exists x belongs to R, हर एक y के लिए आपको x मिलेगा इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड देयरफॉर दिस इज ऑन टू फंक्शन सिंस कोडोमेन इज इक्वल टू R। कोडोमेन मतलब कौन सा हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, कोडोमेन मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स हुआ, और जो आपका रेंज होगा, ठीक है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज पूरा लिखता हूं मैं, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब x के जब नेगेटिव वैल्यूज होंगे तो y के नेगेटिव वैल्यूज होंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, x के जब पॉजिटिव वैल्यू होंगे तो y के पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, x जब 0 होगा तो y भी 0 प्लस 5 मतलब कि 5 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब y के सारे वैल्यूज आपको मिलेंगे, कहां से, इस पर्टिकुलर कोडोमेन से, ठीक, यस। अब ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू s क्यूब प्लस 5 अगर है, इट कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक दिस, हियर y इज इक्वल टू s क्यूब प्लस 5 मतलब क्या हुआ, y माइनस 5 इक्वल टू x क्यूब, सो x इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ y माइनस 5, so therefore for every value of y, क्योंकि क्यूबिक रूट नेगेटिव नंबर का भी होता है, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट होता तो फिर नहीं मतलब आप सॉल्व नहीं कर पाते थे, क्यूबिक रूट है तो नेगेटिव नंबर का भी क्यूबिक रूट होता है जो कि नेगेटिव होता है, so therefore for every y we will get a unique x and this function is also on 2। Exercise 6.2 question first, if f of x equal to 3x plus 5, ठीक है, g of x equal to 6x minus 1, then find first one f plus g of x, f plus g of x, now this is nothing but f of x plus g of x, ठीक है, f plus g मतलब क्या होता है, f of x plus g of x, now what is f of x, it is 3x plus 5, what is g of x, it is 6x minus 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3x plus 6x 9x, 5 minus 1 4, let us solve third of this, f into g of x, so it is equal to f of x into g of x, f of x is 3x plus 5, g of x is 6x minus 1, so I have to just multiply these two terms,
So 3 into 6, 18 x square minus 3x, 5 6 are 30x, 5 into minus 1, minus 5. So 18x square, 30 minus 3, 27x minus 5. So this is question first. Now question third. F of x equal to 2x square plus 3. G of x equal to 5x minus 2. Then find. अब जैसे मैंने कल डिस्कस कर रहा था मैं कि जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं f और g, अगर दो फंक्शंस होंगे तो इनके कंपोजिट कितने बनते हैं? 4. ठीक है, f f f g g f g g o o o o FOF, FOG, GOF, GOG. So there are 4 types of composite functions. इसको ध्यान में रखिएगा. अब देखिए फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, इट इज FOG. तो FOG x is equal to what? It is f of g of x. अब इसी एक से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब मैं सॉल्व करूंगा. देखिए यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? f. सेकेंडरी फंक्शन g. ठीक. सो वी हैव टू फाइंड आउट f ऑफ g ऑफ x. हमारे पास कौन है? हमारे पास f ऑफ x है. नाउ इन दिस f ऑफ x, इफ वी रिप्लेस दिस x बाय g ऑफ x, वी विल गेट व्हाट? f ऑफ g ऑफ x. ठीक है, ये f के ब्रैकेट में x है, यहाँ पर f के ब्रैकेट में g ऑफ x है. अलग अलग लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट. दिस इज f ऑफ x. x की जगह पे अगर मैं g ऑफ x लेता हूं, देन विल गेट व्हाट? f ऑफ g ऑफ x. सो इधर x की जगह पर g ऑफ x आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह पर कौन लेना होगा? g ऑफ x लेना होगा. मैथमेटिकली इट इज रिटन एज रिप्लेस x बाय g ऑफ x. तो ये 2x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 into g ऑफ x स्क्वायर प्लस 3. दैट इज योर आंसर. लेकिन हमारे पास g ऑफ x का भी आंसर है, या फिर g ऑफ x की भी वैल्यू है, और g ऑफ x कितना है आपका? 5x माइनस 2. तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 5x माइनस 2 प्लस 3, एंड देन वी हैव टू सॉल्व दिस. सो 2 5s are 10x माइनस 4 प्लस 3, so it is equal to 10x minus 1. This is FOG. Third is FOF. FOF x. Now FOF means f of x. ठीक है, f of x, and this is equal to what? अब देखिए कि f of x है, in this will replace this x by f of x. ब्रैकेट में देखना है, f के ब्रैकेट में यहाँ पर x है, यहाँ पर f के ब्रैकेट में f of x है. So we have to replace x by f of x. ये आप लिख कर रखिए भले, x is replaced by f of x. तो इधर भी वही करना होगा. It is 2x square, so it is 2 into f of x square and plus 3. आगे ये वाला जो पर्टिकुलर f of x है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है. f of x कितना है? 2x square plus 3. हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट f of x, मतलब अगेन 2x square plus 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 2 इन ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 4 3 12x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड आगे प्लस 3. सो दिस बिकम्स अब 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 4 8, 2 12 24, 2 9 18 plus 3. So this is equal to 18 plus 3 21. So similarly you can find out other functions. This is the simplest method of concept of function में replace what by what. ठीक है, replace what by what.
अब ठीक है, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस से हर चीज नहीं बता सकते, ऑफलाइन मिलने वाले 1 तारीख का फिर बताऊंगा कि अभी एफ ऑफ एक्स से कोई भी अलग अलग टाइप के फंक्शन आप निकाल सकते हैं। जस्ट आपको ध्यान में रखना है व्हाट यू हैव टू रिप्लेस बाय व्हाट, ठीक है, किसको रिप्लेस करना है किस चीज से, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। तो हमने यहाँ पर एफ भी निकाला। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन 4। Verify that f and g are inverse functions of each other. Verify that f and g are inverse functions of each other. इसमें फर्स्ट f of x equal to x minus 7/4. ठीक, f of x equal to x minus 7/4. So here we have to replace this x by g of x. Replace x by g of x. तो फिर क्या हो जाएगा, f of x का हो जाएगा f of g of x. x को रिप्लेस कर दिया हमने g of x से, तो इधर भी x है, यहाँ पर हो जाएगा g of x minus 7/4. And this is equal to what? अब g of x हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर मैंने f of x और g of x लिखा नहीं। अच्छा, g of x 4x plus 7 है। ठीक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में g of x की वैल्यू है 4x plus 7, आगे minus 7/4। ठीक, सॉल्व करते इसे 7 minus 7 कट हो जाएगा, सो इट इज 4x/4, फिर 4 कट हो जाएगा x। ठीक, सो दिस इज f of g of x, जिसका आंसर क्या आया x। फिर हम निकालेंगे ऑल्सो g of x, आपको मालूम है g of x कितना है 4x plus 7. So here again replace x by f of x. तो जो g of x है हो जाएगा g of f of x। इधर 4x है तो 4 into x की जगह पर क्या लेना है हमने, f of x लेना है। ठीक है, क्योंकि x की जगह पर हमने f of x लिया है, इधर भी x की जगह पर हो जाएगा f of x plus 7, which is equal to 4 into, अब f of x कितना है, f of x is x minus 7/4 plus 7, 4 कट हो जाएगा, रिमेन्स व्हाट 4 कट हो गया, इधर बच गया x minus 7 plus 7, फिर -7 plus 7 कट हो गया, आंसर हो गया आपका x। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी कि अगर कोई भी दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स कब होते हैं, तो सिंस f of g of x is equal to g of f of x is equal to x। हमने निकाला, हमने FOG निकाला, हमने GOF निकाला। ठीक है, ये तो हो गया, दैट इज अलग लैंग्वेज में हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज f of g of x मतलब FOG x, g of f of x मतलब GOF x। और इन दोनों, अगर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल है और इनका आंसर कितना है दोनों का x अगर है, तो इसका मतलब हुआ these two functions are inverse of each other। ठीक है, तो अगर FOG और GOF दोनों इक्वल है x के साथ, then therefore f and g are inverse of each other। x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन होता है, वैसे f of x अगर की वैल्यू x होगी, सो इट इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस केस में दोनों अगर इक्वल होंगे और दोनों का आंसर x होगा, देन इट इज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर नहीं होगा तो फिर इनवर्स नहीं है। सेम थर्ड है x plus 3 upon x minus 2। थर्ड f of x equal to x plus 3 upon x minus 2।
So here we'll replace x by g of x. क्यों? क्योंकि हमें अपोजी निकालना है, हमें GOF निकालना है, दोनों का आंसर x आना चाहिए। अगर आता है तो इनवर्स है, नहीं आता है तो नहीं है। f ऑफ x को x की जगह पर हमने ले लिया g ऑफ x, तो इधर भी x की जगह पर हो जाएगा g ऑफ x प्लस 3, x की जगह पर हो जाएगा g ऑफ x माइनस 2। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में g ऑफ x कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। g ऑफ x इज 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, आगे प्लस 3 है, डिनोमिनेटर में g ऑफ x। टू सॉल्व दिस, न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया x माइनस 1, डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया x माइनस 1, दोनों एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे। न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 2x प्लस 3 एज इट इज, और प्लस 3 x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 मतलब 3x माइनस 3 डिनोमिनेटर में। इधर 2x प्लस 3 एज इट इज, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है x माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2। हमेशा आपको इनवर्स फंक्शन में इसी टाइप के आंसर्स मिलेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए इधर 3 माइनस 3 कट हुआ, इधर 2x माइनस 2x कट हुआ। सो 2x प्लस 3x इज 5x अपॉन 3 प्लस 2 इज 5, 5 5 कट हो गया, आंसर हो गया x। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई, ये अपोजी x इक्वल टू x आ गया। अब GOF निकालना है, तो उसके लिए ऑल्सो GOF के लिए मैं लूंगा g ऑफ x। कितना है g ऑफ x? 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। नाउ आई विल रिप्लेस दिस x बाय f ऑफ x। तो जो g ऑफ x है उसका हो गया g ऑफ f ऑफ x। राइट हैंड साइड पर भी जिधर जिधर x होगा वहां पर x की जगह पर हम लिखेंगे f ऑफ x। तो इधर 2x है तो हो गया 2 इंटू f ऑफ x प्लस 3 अपॉन f ऑफ x माइनस 1। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका आंसर x आता है या नहीं आता है। So this is equal to 2 into f of x। अब f of x कितना है? यहाँ पर f of x। So 2 into x plus 3 upon x minus 2, आगे प्लस 3, डिनोमिनेटर में f of x मतलब x plus 3 upon x minus 2 minus 2, सॉरी माइनस 1, f ऑफ x माइनस 1, इधर हो गया f ऑफ x माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे, अगेन न्यूमरेटर का एलसीएम x माइनस 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम x माइनस 2, एक दूसरे के साथ कट हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचता है? 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6, ठीक। फिर 3 इंटू एक्स माइनस 2, सो 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 अपॉन, इधर न्यूमरेटर हो गया x प्लस 3, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, सो माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। देखिए इसका आंसर क्या आता है? 6 माइनस 6 कट हो गया, डिनोमिनेटर में x माइनस x कट हो गया, तो न्यूमरेटर में 2x प्लस 3x 5x, डिनोमिनेटर में 3 प्लस 2 5, फिर 5 5 कट, आंसर x। तो हम लिखेंगे since f of g of x is equal to g of f of x is equal to x, therefore f and g are inverse of each other। अब क्वेश्चन फर्स्ट का जो थर्ड है, इसमें f इंटू जी ऑफ एक्स नहीं है, f इंटू जी ऑफ 3 है।
एफ इंटू जी ऑफ 3। तो बस वही सिंपल कंसेप्ट है, एफ इंटू जी ऑफ 3 मीन्स व्हाट, एफ ऑफ 3 इंटू जी ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 कितना होगा, सो यू हैव टू रिप्लेस एक्स बाय 3। तो ये 3x से तो हो जाएगा 3 इंटू 3, और इधर भी 6x से तो हो जाएगा 6 इंटू 3। फिर हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। हमने जनरल एक्स के लिए निकाला था, ये 3 के लिए है, तो 3 के लिए एफ ऑफ 3 जी ऑफ 3। एफ ऑफ 3 मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करिए 3 से, जी ऑफ 3 मतलब जी ऑफ एक्स में रिप्लेस करिए एक्स को 3 से। आंसर हो जाएगा 3 3 9 प्लस 5 14, 6 3 18 माइनस 1 17, जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 238। So that is the answer. Question number 5. Check if the following functions have an inverse functions. ठीक है, तो check for inverse functions. If yes, find inverse function. ठीक है, अगर होगा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा तो हमें इनवर्स फंक्शन निकालना भी है। पहले तो हमें ये चेक करना है कि वेदर द गिवन फंक्शन हैज ए इनवर्स फंक्शन और नॉट, और अगर है तो फिर उस इनवर्स फंक्शन को भी हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब जैसे हमने चेक किया था कि एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं, ये हमने चेक किया हुआ था। हमें इनवर्स फंक्शन के लिए क्या कंपलसरी होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों चीजें। ठीक है, 1 1 होगा, ऑन टू होगा, तो फिर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम उसे फाइंड भी कर सकते कि कौन सा इनवर्स फंक्शन है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 1 के लिए मैं 1 1 का चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 1 चेक के लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब 5x1 स्क्वायर इक्वल टू 5x2 स्क्वायर, 5 5 कट हो जाएगा। ठीक, then remains what, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स होते हैं x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो हो गया x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू माइनस x2। ठीक, अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जैसे हमने 1 1 ऑन टू जब चेक किया था एक्स स्क्वायर फंक्शन के लिए, तो हमने चेक किया था n टू n, z टू z, r टू r, डोमेन स्पेसिफिक था। यहाँ पर डोमेन अगर डिफाइंड नहीं है, सो ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम द डोमेन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगर डोमेन स्पेसिफाइड नहीं है तो आप उसे सेट ऑफ रियल नंबर्स लेंगे। तो x1 इक्वल टू x2 भी आएगा, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। इसका मतलब दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट 1 1, क्योंकि दो वैल्यू आ रहे, हमारे तो ये चाहिए बस। x1 इक्वल टू x2 अगर होता है तो 1 1 है, लेकिन x1 इक्वल टू x2 भी है, x1 इक्वल टू माइनस x2 भी है, दोनों वैलिड है। तो f of x is not 1 1 and therefore f of x does not have inverse। ये फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड चेक करते हैं। f of x इक्वल टू 6x माइनस 7 अपॉन 3। पहले हम 1 1 का चेक करते हैं। देखिए 1 1 में चेक कर तो ऑन टू कर गया ही नहीं, मैं डायरेक्ट 1 1 अगर नहीं है तो फिर इनवर्स है ही नहीं। अब 1 1 में चेक करता हूँ। 1 1 के लिए क्या होगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब 6x1 माइनस 7 अपॉन 3, 6x2 माइनस 7 अपॉन 3, दोनों तरफ से 3 3 कट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हुआ 6x1 माइनस 7, 6x2 माइनस 7। अब माइनस 7 कट हुआ,
फिर 6x1 इक्वल टू 6x2, फिर 6 कट हुआ। आप सीटी जेडब्ल्यू में मतलब जहां पर कि एमसीक्यू है, आप इस सब सारे कटिंग एक साथ कर सकते हैं। बोर्ड में सारे कटिंग एक साथ नहीं होते, ध्यान में रखिए। ये कटिंग मल्टीप्लीकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। ये कटिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन का है। अगेन ये वाला कटिंग मल्टीप्लिकेशन का है। तो इसको हर एक अलग अलग स्टेप में आपको दिखाना होगा एज फार एज बोर्ड इज कंसर्न। एमसीक्यू में तो हम डायरेक्टली इधर ही कट कर देंगे 3 फिर हम समझ जाएंगे कि अरे -1 भी कट होगा। फिर हम आगे ये भी समझ जाएंगे कि 6 भी कट होगा और x1 इक्वल टू x2 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 एंड देयरफॉर f ऑफ x इज 1 1। ठीक है। अब ऑन टू चेक करने के लिए, मुझे कोडोमेन और रेंज सेम मतलब सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जस्ट आपको कोई भी y की वैल्यू हो, ठीक है, उसके लिए आपको एक x का आंसर, एक प्रॉपर वैलिड आंसर x की आपको मिलनी चाहिए। सो हियर f ऑफ x है, मतलब उसको प्रोसीजर क्या है इसको समझिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया f ऑफ x, मतलब 6x माइनस 7 अपॉन 3। ठीक, तो ऑब्वियसली हर एक y के वैल्यू के लिए आपको x की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी आगे आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयरफॉर 3 into y is 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 7। माइनस 7 इधर लेकर आ गया तो हो गया 3y प्लस 7 इक्वल टू 6x एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y प्लस 7 अपॉन 6। 6 इधर डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप y की चाहे कोई भी वैल्यू लीजिए, यू विल गेट सर्टेन वैल्यू ऑफ x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R एंड देयरफॉर f of x is an onto फंक्शन। हर एक y के लिए आपके पास x अवेलेबल है। इनवर्स फंक्शन हमें लिखना भी है। अगर देखिए ऑन टू फंक्शन है, 1 1 भी है, ऑन टू भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं नीचे लिखता हूं सिंस f ऑफ x इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f ऑफ x हैज एन इनवर्स फंक्शन। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब उसको इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और वो इनवर्स फंक्शन कैसे दिया जाएगा, गिवन बाय x इज इक्वल टू यही वाला आंसर जो ऑन टू चेक करते समय आपने निकाला है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 7 अपॉन 6। दैट इज x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ठीक, which is equal to 3y plus 7 upon 6। यही वाला जो ऑन टू चेक करते समय आप x का आंसर निकालते हो, x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y। सो हियर x इज अ फंक्शन ऑफ y। लेकिन कौन सा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन। x इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ y गिवन बाय 3y plus 7 upon 6। और अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को एक जनरल है कि दिस हैज टू बी ऑलवेज मेंशन इन टर्म्स ऑफ x ओनली। सो हम नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर अगर f इनवर्स ऑफ y है तो f इनवर्स ऑफ x कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका y है, इधर यू हैव टू रिप्लेस दिस y बाय x। y की जगह पर कौन लिखना है, आपने x लिखना है। सो दैट वी विल राइट डाउन इनवर्स फंक्शन ऑफ x। जैसे हमने क्वेश्चन में क्या था, f ऑफ x था, अब मुझे f इनवर्स ऑफ x चाहिए। तो यहाँ पर f इनवर्स ऑफ y है, y को हमने रिप्लेस कर दिया x से, तो इधर 3y है, ये हो जाएगा 3x प्लस 7 अपॉन 6। मतलब कि जो हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहां पे हम चेक कर रहे थे f ओ जी जी ओ एफ, तो अगर ये f ऑफ x है तो ये आपका g ऑफ x है।
ये वो पेयर है, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि इसके पहले जहां पर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों हमें गिवन था, पर हमें चेक करना था, मतलब वेरीफाई करना था कि एक दूसरे के इनवर्स है। आप अगर इन दोनों को चेक करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया, एफ ओ जी जी ओ एफ आप निकालेंगे, यू विल गेट द आंसर एज सिंपल एक्स। एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इस केस में इक्वल आएगा, जो कि इक्वल होगा एक्स के साथ, मतलब ये इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। ठीक, कुछ डाउट है तो पूछिए। तर फिफ्थ क्वेश्चन मध्ये अजून एक क्वेश्चन आहे, दॅट इज क्वेश्चन नंबर 5. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 8. So I have to check for 1 1 and on 2. Now we already know that x cube is 1 1 as well as on 2. ठीक आहे, हे काही गोष्टी लक्षातच ठेवायच्या. हे 1 1 on 2 आहेच, एक्स स्क्वेअर आहे ते नाहीये, इथं बघा हे एक्स स्क्वेअर हे नाहीये, पण एक्स क्यूब मात्र 1 1 on 2 असतं, म्हणजे त्याला इनवर्स एक्झिस्ट करतो. पण या ठिकाणी आपल्याला शो करावं लागेल. तर मी अगोदर 1 1 चेक करतो. 1 1 साठी एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 म्हणजे 9x1 क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 9x2 क्यूब प्लस 8. दोघं साईडने 8 8 कट होणार. ठीक, मग पुढे आपल्याला मिळणार 9xm 9x1 क्यूब इक्वल टू 9x2 क्यूब. परत दोघं साईडचा 9 9 कट होणार. ठीक, सो विल गेट x1 क्यूब मायनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0. याचे फॅक्टर होतात x1 मायनस x2 x1 स्क्वेअर x1 x2 x2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो x1 मायनस x2 इज इक्वल टू 0. बट हा जो सेकंड ब्रॅकेट आहे मी वेगळ्या लँग्वेज मध्ये लिहितोय आता. दिस इज नॉट इक्वल टू 0 सिन्स discriminant is less than 0 in this case. So x1 minus x2 equal to 0 म्हणजे x1 equal to x2. So therefore f of x is 1 1 function. onto चेक करायचंय मला. onto साठी let y is equal to f of x, that is y is equal to f of x किती आहे 9x क्यूब प्लस 8. ठीक, 8 इकडे होऊन जाणार, मग होणार y मायनस 8 इक्वल टू 9x क्यूब. आता 9 डिवाइडला येणार, सो y मायनस 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू x क्यूब. and therefore x is equal to what? X is equal to cubic root of y minus 8 upon 9. So for every value of y, we will get a certain value of x. कारण क्यूबिक रूट निगेटिव्ह नंबरचं पण असतं, पॉझिटिव्हचं पण असतं आणि झिरोचं पण असतं. ठीक, सो राइट डाउन फॉर एव्हरी y belongs to R, there exists x belongs to R, and therefore f of x is an onto function. आता 1 1 पण आहे, onto पण आहे, म्हणजेच त्याचा इनव्हर्स एक्झिस्ट करतो. मग ते लिहिणार सिन्स f of x is 1 1 and onto, therefore f of x has inverse. f of x has inverse given by x is equal to हे फंक्शन जे का onto ला आपल्याला आन्सर मिळालेला आहे क्यूबिक रूट ऑफ y मायनस 8 अपॉन 9. ठीक आहे, मग खाली आपण हा जो x आहे that is x is equal to f inverse of y which is equal to cubic root of y minus 8 upon 9. आणि मग आपल्याला जर सगळ्यात शेवटी इनव्हर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x लिहायचं असेल
तर इथे लिहू शकतो आपण इनव्हर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स इज एफ इनव्हर्स ऑफ एक्स. हा कोण होता? एफ इनव्हर्स ऑफ वाय. वाय ला मी आता रिप्लेस करणार एक्स ने. सो दॅट यू विल गेट क्युबिक रूट ऑफ वाय म्हणजेच एक्स मायनस 8/9. ठीक. सो आजच्यासाठी होमवर्क घ्या. अगोदर मुळात कालचा जो काय होमवर्क होता तुम्ही कंप्लीट केला असेल यस्टरडे होमवर्क, तर तोच तुम्हाला कंप्लीट करायचा होता एक दिवस अगोदरचा. यस्टरडे रिव्हिजन करायची होती तुम्हाला M1 चॅप्टर 5 ची. हे तुम्ही आता कंटिन्यू लक्षात ठेवा. रिव्हिजन मी जर नाही सांगितलं तरी, कारण फुल मार्क्स प्रिलिम होणार आहे. यस्टरडे साठी होतं. टुडे रिव्हिजन साठी आहे M1 चॅप्टर 6. नेक्स्ट होमवर्क जो आहे एक्सरसाइज आपण 6.2 करतो आहे, तर तो करा. एक्सरसाइज 6.2 आणि ऍडिशनल 6.2 हे दोघे कुठपर्यंत? ओनली अप टू क्वेश्चन 5 जेवढा आपण घेतलेला आहे क्लासमध्ये तिथपर्यंत. ओनली अप टू क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 आपण कंप्लीट करा. यांच्यातले जे काय असतील ते आणि ऍडिशनल मधले पण अप टू क्वेश्चन 5. क्लिअर आहे? सो दॅट इज युअर होमवर्क. संध्याकाळपर्यंत सबमिट करा. काही डाऊट असले ते पण मला सेंड करा. ठीक आहे.